ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 1 ਫੈਬਰਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1865 ਦੇ ਵਿੱਚ 1865 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਜਾਂ ਲਾਇਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਟਿੰਗ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਜੇ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨਿਮ ਵਿਜੇ ਥੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਵਿਮਲ ਜੋਸ਼ੀ ਔਰ ਹਵਲਦਾਰ ਜੀਵਨ ਰਸਾਲੀ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? UP ਨੂੰ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ, ਟੈਬੈਲਿਊ ਅਵਾਰਡਸ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼? UP ਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੂੰ। ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ। ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ UP ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟੈਬੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਜੋ ਟੈਬੈਲਿਊ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਫॉर ਅਚੀਵਿੰਗ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਟੈਬੈਲਿਊ ਹੈ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਦ ਲੈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਗੋਡਸ। ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਦ ਲੈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਗੋਡਸ। MI ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਹਾਥ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਹਾਥ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੂਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ। MI ਇੰਡੀਆ ਦੇ CEO ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੂ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ। ਏਅਰਟੈਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਸਨੇ 5G ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਅਰਟੈਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੋਪਾਲ ਵਿਠਲ। TCS ਰੈਂਕਡ ਥਰਡ ਮੋਸਟ ਵੈਲਿਊਡ IT ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਤੀਸਰਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਿਊਡ IT ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ TCS। ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਐਸੈਂਚਰ ਔਰ IBM ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਿਊਡ IT ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ। HDFC ਬੈਂਕ CSC ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਨੇ ਕੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? EMI ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ? HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਾ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ कृषि शाखा ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਾ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ। JK ਸਿਵਾਨ MD CEO ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ MD CEO
JK सिवान अपॉइंट किए गए ने 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ। धनलक्ष्मी बैंक बनाया गया सी। थ्रिसूर केरला ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंटैलीजेंस यूनिट जो कि 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी, लंडन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ है। इसने इंडेक्स जारी किया एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हैल्थ इंडेक्स। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हैल्थ इंडेक्स जारी किया है, जिस दे विच इंडिया किनवें नंबर ते 10वें नंबर ते। ठीक है, टॉप किया गया सिंगापुर द्वारा, सैकेंड नंबर ते ताइवान, थर्ड नंबर ते जापान रहा। ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा एक होर इंपोर्टेंट बेसिकली पहले एग्रीमेंट डिस्कस करते हैं, रैंकिंग काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी। इंडिया द्वारा MOU साइन किया गया ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किस दे नाल? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के नाल। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हैडकुआटर पैरिस फ्रांस दे विच। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हैडकुआटर कित्थे है? पैरिस फ्रांस दे विच। 30 मैंबर कंट्रीज ने इस दे विच, और इंडिया इसका मैंबर नहीं है हजे। अकॉर्डिंग टू लॉवी इंस्टीट्यूट के अनुसार एक थिंक टैंक है जो कि ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड ने टॉप किया कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स दे विच। न्यूजीलैंड ने कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स दे विच टॉप किया है, जिसनों दूसरे नंबर पर वियतनाम रहा, और इंडिया अगर गल करते हैं 86वें नंबर पर रहा। इंडिया 86वें नंबर पर रहा, और ब्राज़ील, मैक्सीको या USA वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ ने, यानी कि इस इंडेक्स दे विच लास्ट नंबर पर। ठीक है जी। नेक्स्ट है फुटबॉलर प्रशांता दोरा जो कि एक फुटबॉलर ने कोलकाता तो बिलोंग करते सी, इन्हां दी रीसेंटली डैथ हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर। इन्हों द्वारा चेन्नई बेंच नूं लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया नैशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का। नैशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का चेन्नई बेंच किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया निर्मला सीतारमन ने। ठीक है जी। अच्छा, नैशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल दे रीसेंटली हैड भी बनाए गए सी, बेसिकली बनाए नहीं गए सी, कहांगे एक्सटेंशन दी गई सी। की नाम से उन्होंने? बंसी लाल भट्ट। इंडिया जापान ने 5th जॉइंट मीटिंग की गई जापान एक्ट ईस्ट फोरम की, जिस दे विच हर्षवर्धन श्रिंगला ने पार्टिसिपेट किया, और जापान वालों जापान एंबेसडर टू इंडिया सुजुकी संतोषी द्वारा पार्टिसिपेट किया। साउथ अफ्रीका नूं इंडिया 1 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन्स दे रहे, याद रखेंगे। एशियन फुटबॉल फेडरेशन द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि इंडिया 2022 का वूमेंस एशिया कप होस्ट करेगा, जिस दे विच 12 टीम्स पार्टिसिपेट करनी है। झारखंड द्वारा अनाउंस किया गया 75% जॉब्स रिजर्व किया गया प्राइवेट सैक्टर जॉब्स लोकल के लिए। 4-day पोएट्री फैसटिवल कविता विजहा फैसटिवल केरला दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। कविता विजहा फैसटिवल डायरैक्टली याद रखेंगे केरला। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे द्वारा बुक रिलीज की गई महाराष्ट्र कर्नाटका सीमावाद संघर्ष आनी संकल्प, जिसनों एडिट किया गया दीपक पवार द्वारा किया गया। ठीक है जी। कंटेंट सारा पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। चलते हैं आप स्टैटिक पोर्शन के वल। स्टैटिक पोर्शन के डिस्कस करांगे स्पोर्ट्स इवेंट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट्स की शुरुआत कर रहे हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स के विच आपां बेसिकली स्पोर्ट्स इवेंट्स देखांगे, जिस दे नाल आपां कप्स एंड ट्रॉफीज़ भी देखते चलांगे। ठीक है जी। तो अज आप पहले डिस्कस करांगे ICC कि जिहड़े ICC के इवेंट्स ने वो कित्थे कित्थे ऑर्गेनाइज किए जाने ने। तो ICC 2023 का ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा। 2021 का वूमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। ठीक है। इस तो इलावा अंडर 19 की गल कर लें। तो अंडर 19 2020 के विच इंडिया ने साउथ अफ्रीका होस्ट कर चुके हैं। अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका होस्ट कर चुके हैं, जिस दे विच बांग्लादेश जितया सी,
और 2021 ਦਾ अंडर 19 वूमेनस वर्ल्ड कप बांग्लादेश होस्ट करेगा। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੂਮੈਨਸ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ T20 ਦੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ 2022 ਦਾ ਵੂਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਫਰਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਇसी ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 1 ਫੈਬਰਵਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਜਟ ਆਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ परसों डिस्कस करांगे, लेकिन पूरी डिटेल दे विच बजट डिस्कस करांगे। जिन्ने भी इंपोर्टेंट फैक्ट बजट दे विचों क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं, हर एक चीज़ को डिस्कस करते चल। ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अज दा फर्स्ट मार्टियर्स डे। मार्टियर्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो 30 जनवरी। 30 जनवरी मार्टियर्स डे कहांगे या कहांगे डेथ एनिवर्सरी। मार्टियर्स डे कहांगे या कहांगे डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दी डेथ एनिवर्सरी। ठीक है, कदों ऑब्जर्व की गई? 30 जनवरी ने ऑब्जर्व की गई। पूरी डिटेल डिस्कस करते हैं कि डेथ एनिवर्सरी महात्मा गांधी दी मार्टियर्स डे ऑब्जर्व किया गया 30 जनवरी। ठीक है जी। इन्हां दी डेथ हुई सी 1948 दे विच, 30 जनवरी 1948। इसी दे नाल एक न्यूज़ है जो इंपोर्टेंट रहेगी कि फिल्म डिवीजन द्वारा ट्रिब्यूट पे की गई महात्मा गांधी नूं किस दे नाल? बाय स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म गांधी रीडिस्कवर्ड जो कि 27 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है हिंदी और इंग्लिश दे विच। ठीक है जी। गांधी रीडिस्कवर्ड डॉक्यूमेंट्री नूं भी इस दिन स्क्रीनिंग की गई। इस तो इलावा 31 जनवरी नूं दो इंपोर्टेंट डेज डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड लैप्रोसी डे। वर्ल्ड लैप्रोसी एक डिसीज़ है जिसकी अवेयरनेस के लिए हर साल यह दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल 31 जनवरी नूं ऑब्जर्व किया गया। यह दिन हर साल लास्ट संडे ऑफ जनवरी ऑब्जर्व किया जाता है। जनवरी के लास्ट संडे नूं इस दिन नूं ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल इसनूं कदों ऑब्जर्व किया गया? 31 जनवरी। ठीक है जी। इस तो इलावा तुहानूं याद होएगा आपां डिस्कस किया सी नैशनल इम्यूनाइजेशन डे जो कि 17 जनवरी नूं सीगा। इसनूं पोस्टपोन किया गया सी ड्यू टू कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। तो नैशनल इम्यूनाइजेशन डे या पोलियो वैक्सीनेशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? 31 जनवरी नूं ऑब्जर्व किया गया। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा फर्स्ट राउंड लॉन्च किया गया पल्स पोलियो प्रोग्राम का इन द प्रेजेंट ऑफ फर्स्ट लेडी सविता कोविंद। बेसिकली जो प्रेसिडेंट के वाइफ होंगे ने उन्होंने फर्स्ट लेडी कहा जाता है। जिस तरीके नाल USA के विच आपां डिस्कस किया सी जिल बिडन फर्स्ट लेडी बने ने, उसी तरीके नाल इंडिया के विच प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने उन्होंने वाइफ का नाम सविता कोविंद है द फर्स्ट लेडी। और हैल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हैल्थ अश्वनी कुमार चौबे भी इस दे विच प्रेजेंट सीगे। ठीक है। नेक्स्ट है वट कंट्री टॉप्ड विच आएगा थे विच कंट्री टॉप्ड इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सब तो पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की गल करते हैं 1993 दे विच बनाई गई सी। यह बर्लिन जर्मनी दे विच है। बर्लिन जर्मनी दे विच है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इस द्वारा इंडेक्स जारी किया गया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जिसनों टॉप किया है बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 यानी कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क द्वारा। ठीक है जी। बेसिकली ये जो इंडेक्स होंगे इस इंडेक्स के एक स्कोर कैलकुलेट किया जाता है जिस दे विच न्यूजीलैंड और डेनमार्क का बराबर स्कोर है, यानी कि सब तो घट करप्शन कित्थे है? न्यूजीलैंड और डेनमार्क दे विच। ठीक है। इसी तरीके नाल सब तो ज़्यादा करप्शन कित्थे है? तो सब तो ज़्यादा करप्शन सोमालिया, सूडान, इन्हां कंट्रीज़ दे विच है।
इसी तरीके नाल इंडिया की रैंकिंग गल करते हैं तो इंडिया इस दे विच 86वें नंबर पर, इंडिया 86वें नंबर पर है और लास्ट ईयर इंडिया 80वें नंबर पर सीगा, यानी कि इंडिया का रैंक रिड्यूस होया, इंडिया ज़्यादा करप्ट होया, ठीक है। आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडिया 80वें नंबर पर सीगा, हुण 86वें ते चला गया है, यानी कि इंडिया दे विच करप्शन इंक्रीज होया, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच स्टेट टॉप्ड इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 दे विच किहड़ी स्टेट ने टॉप किया, तो इस दे विच टॉप किया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बेसिकली ये इंडैक्स आप लास्ट ईयर भी डिस्कस किया सी, याद होएगा सूँ कि इस दे विच बेसिकली डिफरेंट फैक्ट्स देखे जाते हैं कि डेमोक्रेसी किमें है, जेलों की हालत किमें है, वूमेंस दे रिलेटेड क्राइम्स किस तरीके दे नाल ने, वूमेंस की पार्टिसिपेशन किन्नी है जुडिशरी दे विच, पूरी इस दे विच रिपोर्ट जारी की जाती है जिस दे विच टॉप किया गया महाराष्ट्र तो, ठीक है। बेसिकली ये इंडैक्स है जो दो डिफरेंट कैटेगरीज दे विच, एक लार्ज स्टेट एक स्मॉल स्टेट्स रिलीज़ किया जाता है। लार्ज स्टेट्स कैटेगरी दे विच महाराष्ट्र द्वारा टॉप किया गया, ठीक है। पूरी डिटेल अगर चाहिए डिस्कस करते हैं तो महाराष्ट्र द्वारा लार्ज स्केल कैटेगरीज दे विच टॉप किया गया, तमिलनाडु सैकेंड प्लेस ते, तेलंगाना थर्ड प्लेस ते। इसी इंडैक्स दे विच यूपी लास्ट नंबर ते है। इसी तरीके नाल स्मॉल स्टेट कैटेगरी दे विच गोवा ने टॉप किया है और अरुणाचल प्रदेश लास्ट नंबर ते, ठीक है। महाराष्ट्र ने टॉप किया, यूपी लास्ट नंबर पे है, स्मॉल दे विच गोवा ने टॉप किया है और अरुणाचल प्रदेश लास्ट नंबर पे, ठीक है जी। नेक्स्ट है हु हैज़ एड्रेस्ड इन 125th एनिवर्सरी ऑफ प्रबुदा, प्रबुदा भारता, प्रबुदा भारता बेसिकली प्रबुदा भारता 31 जनवरी नूं एक ईवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया उत्तराखंड दे विच यह ईवेंट जिसकी 125th एनिवर्सरी सी। तो प्रबुदा भारता की है, प्रबुदा भारता एक जर्नल है, एक जर्नल है, एक मैगजीन कह सकांगे, एक जर्नल है जो कि स्वामी विवेकानंदा द्वारा शुरू किया गया सी, स्वामी विवेकानंदा द्वारा शुरू किया गया सी, ठीक है जी। तो किन्ना ने इस दे विच एड्रेस किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। पूरी डिटेल इत्थे लिखी होएगी, स्टडी करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 125th एनिवर्सरी दे विच पार्टिसिपेट किया गया ईवेंट 31 जनवरी नूं सीगा, ऑर्गेनाइज किया गया मायावती आश्रम उत्तराखंड दे विच, मायावती आश्रम उत्तराखंड। प्रबुदा भारता की एक जर्नल है जो कि स्वामी विवेकानंदा द्वारा 1896 दे विच 1896 दे विच शुरू किया गया सी, ठीक है। काफ़ी इंपोर्टेंट कहांगे, इस दे विच बेसिकली जो डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स ने उन्होंने बारे दस्या जाता है प्रबुदा भारता दे विच, ठीक है। इस तो इलावा ऑप्शन दे विच अमित शाह सीगे, अच्छा पहले ऑप्शन दे विच मिनिस्टर डिस्कस कर लें, निर्मला सीतारमन फाइनैंस मिनिस्टर, कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। राज्य सभा MP ने कर्नाटका तो इकोनॉमिक सर्वे इन्हों द्वारा ही जारी किया गया, डिटेल डिस्कस करांगे। इस दे नाल बजट भी इन्हों द्वारा ही अनाउंस किया जाएगा, तीसरा बजट होएगा इन्हों का जो ये अनाउंस करनगे और फर्स्ट टाइम यह पेपरलैस होएगा, बजट इंपोर्टेंट रहेगा। अमित शाह होम मिनिस्टर गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP और M वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट ने इंडिया के। अमित शाह एक हाई लैवल कमेटी के हैड सीगे, अ हाई लैवल कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ अप्रूव्ड सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ ओवर 1751 करोड़ रुपीज़, तकरीबन 1751 करोड़ रुपए सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाइए किस दे लई, NDRF नैशनल डिजास्टर रिस्पोंस फंड दे विच। NDRF की फुल फॉर्म इंपोर्टेंट रहेगी, नैशनल डिजास्टर रिस्पोंस फंड दे विच किहड़ी स्टेट्स नूं, असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और UP। असम, अरुणाचल, उड़ीसा, तेलंगाना, UP इन्हां 5 स्टेट्स दे लई NDRF दे विच 1751 करोड़ रुपए की अप्रूवल दी गई है। इस तो इलावा फाइनैंस मिनिस्ट्री की गल करते हैं तो फाइनैंस मिनिस्ट्री द्वारा इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया है, थोड़ी डिटेल है डिस्कस कर लें, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स ने जो कि पूछे जा सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल किन्ना ने लॉन्च किया, प्रेजेंट किया निर्मला सीतारमन द्वारा, किन्नी तरीक नूं 29 जनवरी नूं। ठीक है, हालांकि हमेशा ये बजट तो एक दिन पहले डिस्कस किया जाता है 31 तरीक नूं, लेकिन इसनूं 29 जनवरी नूं रिलीज़ किया गया, याद रखांगे। इस तो इलावा इसनूं प्रिपेयर कौन करता है, बनाता कौन है, तो बनाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि इसनूं कौन बनाता है, तो बनाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के सुब्रमण्यम। के सुब्रमण्यम जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने, इन्हां दे अंडर जिहड़ा डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर्स का वह इसनूं बनाता है। ठीक है, थीम पूछी जाती है तो दो इंपॉर्टेंट थीम्स याद रखांगे, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। कहने का की मतलब है कि 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ इंडिया की GDP है वो इस तरीके ਨਾਲ रही है, डाउनफॉल रही है। ਹੁਣ इसनूं अपर किया जाएगा, यानी कि वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी की जाएगी। ठीक है, इस तो इलावा यह इंपॉर्टेंट रहेगा कि 1964 तक इसनूं बजट के नाल ही पेश किया जाता सी। इकोनॉमिक सर्वे की चीज़ है, इकोनॉमिक सर्वे हुंदा कि पूरे साल दे विच जिहड़ा साल लंघ गया है उस साल दे विच सरकार द्वारा की इनिशिएटिव्स लिते गए, किस तरीके नाल किहड़े-किहड़े सैक्टर नूं फायदा होया, किहड़े सैक्टर नूं नुकसान होया। ठीक है, एक पूरी रिपोर्ट हुंदी है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, बजट की हुंदा, बजट हुंदा अगले साल दे विच, अगले साल दे विच पूरा एक साल दे विच की चीज़ां इनिशिएटिव्स लिते जाणगे और किस तरीके नाल लिते जाणगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे 1964 तक बेसिकली जो 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ पहला बजट ਸੀਗਾ उसी ਦੇ ਨਾਲ पेश किया जाता सी। 1964 तक बाद ਦੇ ਵਿੱਚ इसनूं अलग-अलग किया गया। ठीक है, हुण कुछ फैक्ट्स ने इसके रिलेटेड, तो जीडीपी फोरकास्ट अनाउंस की गई है कि इस साल जी GDP रहेगी वह 7.7% रहेगी, यानी कि 2020-21 की। ठीक है, यानी कि मार्च तक की जी GDP रहेगी माइनस कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि -7.7% रहेगी। लेकिन जो अगले साल रहेगी 21-22 की मार्च 2021 तो मार्च 2022 तक वह रहेगी 11%। ठीक है, बेसिकली कोविड-19 के कारण डिपार्टमेंट्स बंद रहे, इंडस्ट्रीज बंद रही, इंडिया ने एक्सपोर्ट रिड्यूस होया, इंपोर्ट इंक्रीज होया। तो टोटल एक्सपोर्ट रिड्यूस्ड बाय 5.8% और इंपोर्ट इंक्रीज्ड बाय 11.3%। हैल्थ सैक्टर के अंडर जी इन्वेस्टमेंट है वह इंक्रीज की गई 1% तो 2.5 तो लैके 3% ऑफ GDP। बेसिकली हैल्थ सैक्टर के अंडर अगर आप गल करते नैशनल हैल्थ मिशन है जोड़ा उसके अंडर जी 1% तक इन्वेस्टमेंट की जाती है, वह अनाउंस की गई है कि 2.5 तो 3% तक की जाएगी। फॉरेक्स रिजर्व है जोड़ा इंडिया का फॉरेक्स अकाउंट है, फॉरन एक्सचेंज फॉरेक्स अकाउंट वह रीच होया 586.1 बिलियन $। से। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट यह कहा गया कि इंक्रीज की जाएगी, यह इंक्रीज की जाएगी 3.2% तो 11%। इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की जाएगी। इसी दे नाल सोलर एनर्जी सैक्टर नूं इंप्रूव करने की जरूरत है, अनाउंस किया गया है कि सोलर एनर्जी सैक्टर दे विच असीं जिहड़ा टारगेट अचीव करना है उस टारगेट नूं अचीव करने के लिए स्पीड अप करने की जरूरत है। ठीक है, एग्रीकल्चर सैक्टर नूं कहंदे 3.4% बेनीफिट होया। ठीक है, ये सारी एक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट के अनुसार ही जो जो चीज़ां उन्होंने दसियां ने वही जो उन्होंने विचों जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ने वो लेके आए हैं। इंपॉर्टेंट रहेंगे, हर एक पॉइंट याद रखने हैं कि प्राइम मिनिस्टर किसान स्कीम है, जो PM किसान स्कीम है, जो इस स्कीम के अंडर 90,000 करोड़ रुपए दिते जा चुके हैं अंडर 44,673 किसान क्रेडिट कार्ड। जिहड़े किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए ने प्राइम मिनिस्टर किसान स्कीम के अंडर, इस दे अंडर 90,000 करोड़ रुपए दिते जा चुके हैं। ठीक है, इस तो इलावा वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव की काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई, इस दे विच कि 7 कंट्रीज़ नूं इंडिया ने फ्री वैक्सीन प्रोवाइड की है। इसी दे नाल प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के लिए कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो कि 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ लॉन्च की गई है, बेसिकली अगर डेट की भी गल करते हैं तो 25 जून 2015 ਨੂੰ लॉन्च की गई सी। इसका टारगेट 2022 ही रहेगा हाउसिंग फॉर ऑल का, कि 2022 तक इसनूं अचीव कर लिया जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब नाल इसनूं बनाया जा रहा है तो 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा हाउसिंग फॉर ऑल का, यह इस दे विच कहा गया।
ठीक है जी। हालांकि इस तो इलावा जल जीवन मिशन की भी गल की गई, जल जीवन मिशन के लिए टारगेट अचीव पूरे करने ने, ठीक है, या कहांगे जन आरोग्य योजना के टारगेट पूरे करने ने। जो फैक्ट इंपोर्टेंट रहणगे वो आप डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसी दे नाल बजट भी डिस्कस करांगे, बजट कल के सैशन के कोशिश करांगे कल डिस्कस करिए, नहीं परसों डिस्कस करांगे, ठीक है जी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वल। तो भारत नैट प्रोजैक्ट कदों शुरू होया सी, इस दे लिए भी रिपोर्ट अनाउंस की गई है। बेसिकली जो यूनियन मिनिस्टर कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने रवि शंकर प्रसाद, IT मिनिस्टर और कम्युनिकेशन मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद द्वारा अनाउंसमेंट की गई है। बेसिकली भारत नैट प्रोजैक्ट 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू किया गया सी। पूरी डिटेल डिस्कस करते हैं कि इन्होंने अनाउंस किया है कि इसका टारगेट है 2.5 लाख ग्राम पंचायत का, ठीक है, जिन्होंने हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। कनैक्टिविटी की जा रही है ग्राम पंचायत की, जिसके अंडर 1.51 लाख नूं ऑलरेडी कनैक्ट कर दिता गया, ठीक है। जो भारत नैट स्कीम है 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू की गई सी, जिसका पुराना नाम नैशनल ऑप्टिकल फाइबर नैटवर्क, ये कोई स्कीम नवीं लॉन्च नहीं की गई सी। 2011 में जो स्कीम सी नैशनल ऑप्टिकल फाइबर नैटवर्क, इसका नाम 2015 में चेंज करके भारत नैट किया गया सी। नेक्स्ट है विच इंडियन ब्रांड रैंकड एट 5th इन स्ट्रोंगेस्ट ब्रांड्स ग्लोबली एक लिस्ट जारी की गई ब्रांड्स की। एक आप डिस्कस की सी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब के नाल कई टॉप पर आ गई है, TCS टॉप पर आ गई है। लेकिन स्ट्रोंगेस्ट ब्रांड्स की अगर आप गल करते हैं ग्लोबली, स्ट्रोंगेस्ट ब्रांड्स ग्लोबली अगर आप गल करिए तो इंडिया की 5वें नंबर पर रही है, किहड़ा ब्रांड रहा? जियो ब्रांड है, जो रिलायंस जियो, ये 5वें नंबर पर आ गया स्ट्रोंगेस्ट ब्रांड्स के विच, ठीक है। पूरी डिटेल डिस्कस करते हैं कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है और चौथे पर कौन है। तो पहले तो कौन है? वीचैट है, वीचैट फर्स्ट नंबर पर है। दूसरे नंबर पर फरारी कंपनी है जो दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर एक बैंक है, रशिया का बैंक है, SVR बैंक रशिया, ठीक है जी। और चौथे नंबर पर है कोका कोला, और इंडिया की कंपनी जियो 5वें नंबर पर, ठीक है। इस तो इलावा L&T और इसके रिलेटेड न्यूज़ है, डिस्कस करते हैं। L&T कंपनी द्वारा 25,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जितया गया है 28 स्टील ब्रिजेस के लिए। 28 स्टील ब्रिज बनाए जाएंगे प्रपोज्ड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई एंड अहमदाबाद। बेसिकली मुंबई और अहमदाबाद के विचाले जो बुलेट ट्रेन लगाई जा रही है, ठीक है, उसके अंडर स्टील ब्रिजेस बनाए जाएंगे। स्टील ब्रिजेस जोड़े बनाए जाने ने उसके लिए 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट जी कंपनी ने जितया है L&T ने, ठीक है। इसी तरीके अगर आप गल करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि पार्लीमेंट की बिल्डिंग का टारगेट 2022 है, ठीक है, और इसनू बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी ने जितया है, इसका आंसर तुम दसोगे, ठीक है। ऑप्शन दे देना टाटा, L&T या अदानी, ठीक है। द्वारा KGFS एक NBFC कंपनी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसने अवार्ड दिते हैं टेक्नोलॉजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड। केड़ी कंपनी ने दिता गया है? द्वारा KGFS। नेक्स्ट है कला उत्सव इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। कला उत्सव एक इनिशिएटिव लिया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा। एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है कला उत्सव। डिस्कस करते हैं डिटेल दे विच। पहले डिस्कस करते हैं कल्चर मिनिस्ट्री और टूरिज्म मिनिस्ट्री कितना लवे? प्रहलाद सिंह पटेल कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर ने दामो मध्य प्रदेश तो लोकसभा MP ने। एजुकेशन मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल निशांक दे लवे है हरिद्वार उत्तराखंड तो लोकसभा MP ने। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किरण रिजिजू लवे है और अरुणाचल वेस्ट तो लोकसभा MP ने। इस तो इलावा इन्हों लवे एक होर इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, आयुष मिनिस्ट्री। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री खुंती झारखंड तो जो लोकसभा MP ने अर्जुन मुंडा इन्हों के कोल। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने कला उत्सव की शुरुआत की है अंडर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसके अंडर बेसिकली जो सैकेंडरी स्टेज के
ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 11 12 ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ठीक है, अपने लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट बनेगा कि कला उत्सव बेसिकली किहड़े डिपार्टमेंट का है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ साइंड 500 बिलियन US डॉलर्स लोन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 बिलियन का लोन साइन किया है किसी बैंक के नाल फॉर स्ट्रैंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। स्टार्स प्रोग्राम की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी स्ट्रैंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। 6 स्टेट्स दे विच इसनूं एजुकेशन क्वालिटी नूं इंप्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक के नाल यह एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है जी, बाकी ऑप्शंस अब पहले कई बार डिस्कस किए हुए हैं, दोबारा डिस्कस नहीं करांगे। न्यूज़ डिस्कस कर लेने कि वर्ल्ड बैंक के नाल जिहड़ा एग्रीमेंट साइन किया गया है तो 190 मैंबर कंट्रीज़ ने वर्ल्ड बैंक के हैड डेविड मलपास ने और वाशिंगटन DC के इसका हैडक्वार्टर है। ठीक है, तो 6 स्टेट्स किहड़ियां ने, 6 स्टेट्स इंपॉर्टेंट रहणगियां हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। ठीक है जी, बेसिकली ऑप्शन इस तरीके नाल दिता जा सकता है कि 4 अगर 5 ऑप्शंस ने तो 4 ऑप्शंस इन्हां दे विचों और 5वां ओड वन आउट कि केड़ा इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो याद रखांगे केड़ी है हिमाचल प्रदेश, केरला, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। टोटल एग्रीमेंट 500 बिलियन का है और फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी स्टार्स की, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरैक्टर एंड CEO ऑफ SBI कार्ड्स। ਆਪਾਂ डिस्कस किया कि SBI कार्ड्स के जोड़े CEO सीगे अश्वनी कुमार तिवारी सीगे, इन्हां नूं चेंज कर दिता गया, SBI के ही MD बनाए गए ने, SBI के MD बना दिते गए ने। ठीक है, तो जी पोस्ट खाली हुई तो उस पोस्ट से SBI कार्ड की जी पोस्ट है इत्थे भी कोई नवे परसन अपॉइंट किए जाएंगे, तो अपॉइंट किए गए रामा मोहन राव अमारा SBI कार्ड के नवे हैड अपॉइंट किए गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा SBI कार्ड के नवे हैड रामा मोहन राव अमारा। ठीक है, इसके अलावा बाकी 4 ऑप्शंस इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ने डिस्कस करते हैं। तो अनीश शाह चेयरमैन अपॉइंट किए गए महिंद्रा फाइनेंस के नवे चेयरमैन अनीश शाह। RS शर्मा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है जो NHSA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है जो इसने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव नू अपॉइंट किया है इंश्योरेंस स्कीम नू हैड करने के लिए आयुष्मान इंश्योरेंस स्कीम है जो। ठीक है, हमने आप डिस्कस भी किया सी आयुष्मान इंश्योरेंस स्कीम है जो इसनू हैड करने के लिए किन्हां नू अपॉइंट किया गया RS शर्मा द्वारा। RS शर्मा। सुभद्रशिनी त्रिपाठी इन्हों इंडियन नैक्सट एंबेसडर टू कजाकिस्तान के नवे एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं सुदर्शनी त्रिपाठी। कजाकिस्तान कैपिटल अस्ताना, करंसी तेंगे चलती। मैथिस बॉय बेसिकली मैथिस बॉय डेनमार्क तो बिलोंग करते हैं, ओलंपिक सिल्वर मैडलिस्ट ने जिहड़े कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करनगे, कोच बननगे SS रनीके रेड्डी और चिराग शेट्टी दे। ठीक है, न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिहड़े SS रनीके रेड्डी और चिराग शेट्टी ने दोनों 2020 दे विच अर्जुन अवार्ड दिता गया है। अर्जुन अवार्ड बैडमिंटन के लिए दिता गया है। दोनों के नाम इंपॉर्टेंट बननगे। डेनमार्क तो कोच इन्हां लई अपॉइंट किए गए हैं मैथाइस बॉय। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आंसर देना। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया की हॉकी टीम के लिए भी एक परसन अपॉइंट किए गए सी ट्रेन करने के लिए ओलंपिक्स दे विच अच्छे प्रदर्शन के लिए एक परसन अपॉइंट किए गए हैं, उन्हों का नाम कमेंट बॉक्स दे विच। ठीक है, इस तो इलावा एक होर परसन फॉरन परसन अपॉइंट किए गए सी, मेरे माइंड चो स्किप हो रहा है कि किस लिए अपॉइंट किए गए सी, दोनों के नाम दसने ने। एक फॉरन परसन होर इंडियन टीम नू कहांगे टीच करने के लिए कोच करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं, उन्होंने नाम दसने ने जो रीसेंटली अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट है
with which country India has launched 2021-22 as year of environment? ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2021-22 ਨੂੰ ਈਅਰ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਈਅਰ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, इस तो इलावा अगर गल करते हैं सोलर एनर्जी नू प्रमोट किया जाएगा रीन्यूएबल एनर्जी के अंडर ही, और इन्वायरमेंट की प्रोटैक्शन की जाएगी, कंजर्व किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। इस तो इलावा बाकी ऑप्शन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। तो जापान के नाल जिहड़ी इंडिया की टैक्सटाइल्स मिनिस्ट्री है, इंडिया की टैक्सटाइल्स मिनिस्ट्री ने जापान के निशिकन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर, नेशनकन इवैल्यूएशन सेंटर है जो, इस दे नाल एग्रीमेंट साइन किया है टू एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल, तो टाइपिंग मिस्टेक है, टेक्सटाइल एंड अपैरल टू जापान, ताकि इंडिया जापान नू टैक्सटाइल एक्सपोर्ट कर सके। इस दे लई इंडिया ने एग्रीमेंट किया है जापान दे नाल। ठीक है, अगर डिटेल दे विच डिस्कस करिए तो जापान की निशिकन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर दे नाल। ठीक है, यूएसए, तो यूएसए प्रेसिडेंट जो बिडन द्वारा सोहिनी चैटर्जी, इंडियन अमेरिकन सोहिनी चैटर्जी नू सीनियर पॉलिसी एडवाइजर बनाया गया है यूएसए एंबेसडर टू यूनाइटेड नेशन। जिस तरीके नाल इंडिया के एंबेसडर ने यूनाइटेड नेशनस दे विच TS त्रिमूर्ति, उसी तरीके नाल यूएसए के भी एंबेसडर ने यूनाइटेड नेशनस दे विच, तो उन्हां दे पॉलिसी एडवाइजर बनाए गए ने सोहिनी चैटर्जी। इसी दे नाल अदिति गौर नू पॉलिसी एडवाइजर बनाया गया है यूएसए मिशन टू यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, 2 इंडियन अमेरिकन अपॉइंटमेंट्स ने और दोनों वूमेंस ने, इंपॉर्टेंट रहेंगे। पाकिस्तान ने GI टैग दिता है फाइनली बासमती राइस के लिए। बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान और होर भी कुछ कंट्रीज़ की अगर आप गल करते हैं, फाइट चल रही थी बासमती राइस के GI टैग के लिए, तो इसनूं किसने जित लिया? पाकिस्तान ने जित लिया। ठीक है, और इंडिया के भी अगर गल करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP इन्हां स्टेट्स की भी फाइट चल रही थी बासमती राइस के लिए। ठीक है, तो जितया किसने है? पाकिस्तान ने जितया। ठीक है, बेसिकली GI टैग याद रखांगे 10 सालों के लिए दिता जाता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च एग्रीकल्चर पंप पावर कनैक्शन पॉलिसी? एग्रीकल्चर पंप पावर कनैक्शन पॉलिसी केड़ी स्टेट के चीफ मिनिस्टर द्वारा लॉन्च की गई है? तो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे द्वारा लॉन्च की गई। इसी दे नाल डिफरेंट पोर्टल्स भी लॉन्च किए गए ने, डिस्कस करते हैं। बाकी स्टेट्स के रिलेटेड न्यूज़ ने उन्होंने भी डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहले चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे द्वारा एग्रीकल्चर पंप पावर कनैक्शन पॉलिसी लॉन्च की गई। इसी दे नाल कृषि ऊर्जा अभियान वैब पोर्टल, सोलर एनर्जी लैंड बैंक पोर्टल और महाकृषि अभियान एप्लीकेशन नू भी इन्हां द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है जी, इस तो इलावा मुंबई दे विच ही एक इंपॉर्टेंट होर न्यूज़ सी, इंडियन नेवल फास्ट अटैक क्राफ्ट। इंडियन नेवल फास्ट अटैक क्राफ्ट एक शिप कहांगे T81 जो कि सुपर डबोरा MK सेकंड क्लास का सी, इसनू डीकमिशन किया गया। ठीक है, पहले आप डिस्कस किए हुए ने इंडियन नेवल शिप्स नू जो डीकमिशन किया जाता है, उन्होंने फैक्ट इंपॉर्टेंट बनते होंगे ने कि उन्होंने कदों कमीशन किया गया सी, कित्थे कमीशन किया गया सी, डीकमिशन कदों किया गया और कित्थे डीकमिशन किया गया। ठीक है, तो इसी तरीके नाल 20 साल तक काम किया इस शिप ने। इस शिप नू कित्थे डीकमिशन किया गया? नेवल डॉकयार्ड मुंबई दे विच, नेवल डॉकयार्ड मुंबई दे विच डीकमिशन किया गया। इसनू गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की हैल्प के नाल, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इजराइल की हैल्प के नाल बनाया गया सी 1999 दे विच। 1999 दे विच इसनू बनाया गया सी, इंडिया और इजराइल ने बनाया सी। इंडिया वालों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया सी, डीकमिशन किया गया मुंबई दे विच। तेलंगाना सरकार द्वारा मिशन भगीरथ के अंडर ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स शुरू की गई ने। ठीक है, बेसिकली कि जिन्नी भी गवर्नमेंट मीटिंग्स होणगियां उन्हां दे विच वाटर दे लई मिशन भगीरथ जिहड़ा ब्रांड नेम के नाम तो बोतल शुरू की ने, पानी की बोतल्स उन्होंने यूज़ किया जाएगा और इसी के अंडर हर घर सप्लाई नू भी प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट है
हैदराबाद मैट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद मैट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक ट्रक डॉक लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया। ट्रक डॉक लॉजिस्टिक पार्क कित्थे बनाया गया है? बाटा सिंगरम रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट दे विच तेलंगाना, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना दे विच ट्रक डॉक लॉजिस्टिक पार्क इनॉग्रेट किया गया। वैस्ट बंगाल, वैस्ट बंगाल दे विच अगर आप गल करते हैं KVIC द्वारा, KVIC द्वारा वैस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट दे विच चरखा वगैरह नूं डिस्ट्रीब्यूट किया गया अपने लिए। KVIC के फैक्ट इंपोर्टेंट बनेंगे 1956 दे विच बनाई गई सी, मुंबई दे विच हैडकुआटर है और विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना इस दे हैड ने। ठीक है, इस तो इलावा एक पुरानी न्यूज़ इंटरलिंक करते हैं कि इन्हों द्वारा एक पेंट लॉन्च किया गया सी, एक पेंट लॉन्च किया गया सी, काओ डंग तो जिहड़ा बनाया गया पेंट है वह लॉन्च किया गया। तो इसका नाम की सी, इसका नाम की सी? कमेंट बॉक्स दे विच दसने। तमिलनाडु एक फैसटिवल ऑब्जर्व किया गया, फ्लोट फैसटिवल, डायरैक्टली पूछा जाएगा कित्थे ऑब्जर्व किया गया? तमिलनाडु दे विच। ठीक है, कितना गया नहीं कहांगे, कितना जा रहा है कहांगे, क्योंकि तकरीबन 14-15 दिन चलेगा ये फैसटिवल। तो कित्थे? मीनाक्षी टैंपल दे विच, मीनाक्षी सुंदरेश्वर टैंपल, डायरैक्टली मीनाक्षी टैंपल पूछा जाता है कित्थे है? तो तमिलनाडु दे विच है। वैगई रिवर के किनारे, वैगई रिवर कित्थे है? तमिलनाडु दे विच है, मदुराई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फ्लोट फैसटिवल काफ़ी इंपोर्टेंट फैसटिवल होंगे तमिलनाडु का, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच सिटी ऑफ उत्तराखंड हैज़ बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट टू हैव फुल लिटरेसी अमंग द सिटीजन। ठीक है, अगर बेसिकली आप लिटरेसी इंडेक्स डिस्कस करते होंगे तो अपन पता है कि केरला टॉप करता है। ठीक है, केरला दे विच सब तो ज़्यादा लिटरेसी रेट है, यानी कि सब तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ने। ठीक है, इसी तरीके नाल उत्तराखंड सरकार द्वारा अनाउंस किया गया है कि साडा यह डिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके नाल लिटरेसी रेट दे विच टॉप ते है, यानी कि 100% लिटरेसी रेट है। इतों तक कि जिहड़े 60 या 70 साल के बजुर्ग भी ने वह भी पढ़े लिखे ने पूरी हाई एजुकेशन के नाल। तो किहड़ी स्टेट? देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून नूं अनाउंस किया गया फुली लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इस तो इलावा उत्तराखंड कैपिटल गारसेन और देहरादून दोनों है, याद रखांगे। उत्तराखंड की समर कैपिटल गारसेन बनाई गई है। ठीक है, ऋषिकेश तो याद रखांगे इत्थे लक्ष्मण झूला नूं रिप्लेस करके ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज लगाया जा रहा है। ठीक है, इस तो इलावा हरिद्वार तो याद रखांगे, हुणे डिस्कस किया सी लोक सभा MP ने, रमेश पोखरियाल निशांक एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट्स होंगे ने, ये इंटरलिंक करते चलिया करो, याद रहेंगे। आज के लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।